Hey guys, welcome back to our channel. We are here today at the Orange City. Nagpur is also the center point of Maharashtra. Now we are heading towards our destination, which is quite interior from Nagpur city. It's approx 3 hours journey to reach our state. Aksa's home will be our home for the next few days. Hey guys, welcome back to our channel and here the group. So where are we guys today? We are in Tadoba. And when does Tadoba come? In Chandrapur. Nagpur. Yeah, Nagpur. So this comes in the city of Nagpur and Tadoba is approx 147 kilometers away from Nagpur. This place right now is very hot. It's considered to be the warmest during summers. But it's the right time for the activity we have come here for. And why is Tadoba famous for? Tigers. Tigers. Yes. So Carmen will tell you all about this place. Tadoba Andari Tiger Reserve is a wildlife sanctuary. It is situated in Chandrapur and said to be one of the oldest and largest wildlife. Plus, it was created in the year 1955. So the word Tadoba is derived from the name of God, Tadoba and or Taru, which is worshipped by the people in this region. And Andari is the name derived from Andari River, wherein it's the same as it belongs to this region. Tadoba is also known as the land of tigers. Tadoba has the most number of spottings happening around. So guys, are you all excited? Yep. We are much awaited. So let's see how this trip goes and how many tigers we get to spot. A quick peek inside the room. Time to freshen up. So this vehicle is actually known as a gypsy. It's an open jeep. Get the best experience of wild animals in their natural habitat. The animals we're going to spot really depends on luck, timing, and patience. The yellow house, the bungalow, what you all can see, is a homestay where we are staying for the next 2 days. And here's a cow. Hey guys, here we are back. We had a power nap. Feels fresh now. It was a long journey from Mumbai to Nagpur. Yes, I would like to mention that we had to book it, I guess, 2 months prior because sometimes the seats don't be available. Yeah. Okay, so the thing is like this 2 months prior reservation is not mainly because of the train tickets. It's for safari gypsy tickets. The vehicle what you'll seen prior is actually the gypsy, and your reservations for gypsy happen like prior in advance. I would say that, like for a safari for next month, I doubt you all will be getting the bookings. March, April, May are considered to be peak season due to being summer. The spotting of tigers and other big cats is it's more likely. I would like to say that Sonal, he will be speaking very soon to you all about this place, and he was the one who actually helped us to get the safari tickets, the whereabouts, everything. He was in touch with Myron and he handled everything very smoothly. Yes, actually he took care of our entire package. Now currently we are at a lake where kayaking and boating is allowed. Apart from kayaking and boating, other activities include cycling, night stay in Machan, and log hut. This lake is known by the name Moharli Lake, also commonly referred as Lotus Lake.
We spent the evening around watching the sunset. So guys, finally we have Sonal, the person we've been talking about the whole day. This homestay Aksas belongs to him. So Myron will carry on. Okay, so this homestay, it literally feels like home. ये घर जैसे लगता है. The food here is amazing. The best thing is, like the safari is what we do. It's very close. It's at a walkable distance. Morley Gate is very close. You can walk it out. And you know na, that's a buffer zone. We'll tell you all what is a buffer zone and a core zone shortly. And that also can be walked out. Okay, तो सोनल भाई हमें इस जगह के बारे में, ताडोबा के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में बताना. इसका नाम ताडोबा कैसे पड़ा? ये जो पूरा ताड़ोबा टाइगर रिजर्व है वो पूरा ट्राइबल एरिया है. मतलब ट्राइबल यहाँ पे रहते थे, मतलब गोंड जो ट्राइबल है. और 1955 को ये नेशनल पार्क के तौर से Declare establish कर हुआ. गया. हाँ, देन ये 1985 में यहाँ जो सेकंड पार्ट था अंधारी रिवर का, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से घोषित किया गया. और 1984 में ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बना. मेनली पहले तो यहाँ पे 3 डिवीजन होते थे, मतलब मोहरली, ताड़ोबा एंड कोलसा. सफारी वाइज यहाँ पे 4 जोन से, एक मोहरली, सेकंड नवेगांव, थर्ड कोलारा और फोर्थ कोलसा. चारों जोन अच्छे हैं, मतलब ऐसा कोई ये नहीं बोल सकता कि ये जोन में हर एक जोन का स्पेशलिटी अलग है. बट यहाँ पे 2 पार्ट है, एक कोर और एक बफर का. कोर पार्ट मतलब जो ताड़ोबा का ओल्ड जोन था उसको कोर जोन बोलते हैं, और जो नया यहाँ पे एडिशन किया गया तो उसको बफर जोन बोलते हैं. पहले ताड़ोबा का टोटल जो एरिया था 625.40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था. अभी वो 1750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इतना उसको बढ़ा दिया गया. यहाँ पर क्या क्या एनिमल की स्पॉटिंग होती है? टाइगर टाइगर तो मेन वीआईपी एनिमल्स है. लेपर्ड है, वाइल्ड डॉग है, स्लॉथ डियर है. बाकी इसमें डियर्स में स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है, चौसिंगा बोलते वो है. बाकी इंडियन गोर है, यहाँ पे नील गाय है. मैं सुना हूँ यहाँ पर एक ब्लैक पैंथर भी है. हाँ, ब्लैक पैंथर नहीं बोल सकते बट लेपर्ड बोलते हैं. पूरा प्योर ब्लैक नहीं है वो, स्पॉटिंग उसका दिखता है. कितने टाइगर्स है, आपको कुछ आइडिया होगा? एक्चुअली ताड़ोबा में अभी टाइगर पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, मतलब अराउंड 150 प्लस टाइगर पॉपुलेशन है. बट जो कप्स रहते हैं उनको सेंसस में या टाइगर काउंटिंग में उनको काउंट किया नहीं जाता. ओके. तो यहाँ के टाइगर से 150 बोल सकते हो, बट वो एक ही जगह पे नहीं रहते. वो अपना एरिया सर्च करने में अलग अलग जोन में या जंगल में, फॉरेस्ट में माइग्रेशन करते. जैसे यहाँ पे माइग्रेशन जो होता है उमरेड, करांडला, टिपेश्वर, कावल, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, ब्रह्मपुरी डिवीजन, नागसीरा, नवेगांव, बोर, इतना एरिया में टाइगर माइग्रेशन होता है यहाँ. हर एक टाइगर या टाइगरेस को एक नाम दिया जाता है. ये क्या बेसिस पे दिया जाता है? कि पहले टाइगर को नाम दिया जाता था एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, बट अभी उनको टी नंबर से कोड दिया, जैसे T1, T2 ऐसे. बेसिकली वो उनके बिहेवियर से, लुक से या उनके स्ट्राइक मार्किंग से उनको नाम दिया जाता था. जैसे एस पैटर्न है तो सोनम, जैसे माया है उसके बिहेवियर से माया ये नाम पड़ा है. जब टाइगर ह्यूमंस पर अटैक करते हैं या नहीं? मोरली विलेज देखा है. Yes. इसके तीनों साइड में पूरा ताड़ोबा का फॉरेस्ट लगती है. और अभी टूरिज्म से पहले यहाँ के लोगों का ओवरऑल डिपेंडेंसी है पूरा जंगल ही था. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि टाइगर अटैक करता है. टाइगर की मेन बिहेवियर है कि वो कभी इंसानों पे अटैक नहीं करता. और उसको बोलते ही वैसे कि रॉयल जो नाम दिया है रॉयल बंगाल, तो इसीलिए वो रॉयल उसका बिहेवियर है. वो कभी डायरेक्टली अटैक नहीं करता है. और ट्राइबल के लिए तो टाइगर गॉड है. तो अभी गाँव के बाहर देखते हो तो आपको स्टैचू भी मिल जाएगी. यस. वाघोबा बोलते हैं या वाघाई बोलते हैं. टाइगर के हाथ से अगर इंसान की डेथ होती है तो वाघोबा उसका स्टैचू बनाते हैं. और अगर लेडीज़ की अगर डेथ होती है तो उसको वाघाई बोलते हैं. मतलब ट्राइबल में बोला जाता है कि बाघ के हाथ से मरना अमरत्व प्राप्त हो गया है, कि बहुत अच्छा है कि उससे डेट होना. और यहाँ के जो लोकल जितने भी इसमें जो शादी का हो गया या किसी घर में अगर कोई फंक्शन हुआ तो उसका पूजा किया जाता है. तो नॉर्मली टाइगर मैन ईटर या आदमखोर ऐसे होते नहीं.
उसके ब्लड लाइन में ही मैन ईटर नहीं है, वो जन्म से वो इंसान को मारना उसके इसमें नेचर में नहीं है। और वो बहुत सारे रीजंस है। अगर टाइगर सब एडल्ट है, अगर उसको पता नहीं है कि क्या खाने के लिए क्या हंट करना है, उसने सीखा नहीं होगा, उसको जंगल से मेन जंगल से उसको बाहर अगर निकलना पड़ता है तो उसका इजी हंट होता है कैटल। तो कैटल को चेस करते समय उसमें इंसान भी आ जाता है, तो बहुत सारे इंसिडेंट में इंसान मारा जाता है। और दूसरा जो टाइगर होता है, जो ओल्ड टाइगर होता है, उसको एनर्जी नहीं रहती हंटिंग की, उसके दांत गिरे रहते हैं, नाखून टूटे हुए रहते हैं, तो वो भी इजी हंट के लिए कैटल फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो उसमें इंसान भी आ जाता है। तो इसलिए जो कुछ इंसिडेंट हुए हैं ये दो टाइगर की वजह से होता है। फुल ग्रो टाइगर तो कभी इंसान में डायरेक्टली अटैक नहीं करता है। बहुत सारे यहाँ के विलेजर्स आमने सामने 5 फुट से भी टाइगर को देखते हैं। तो इंसान को देखता भी नहीं है, वो उसको पता है कि ये मेरा जंगल है, मुझे यहाँ पे रुकना है तो मैं रुकूंगा, नहीं तो जाऊँगा। I hope this clears out the misconception of tigers killing humans. It's not true. They only और do बहुत it. शांत स्वभाव है। सोनल भैया, हमने ये कल मोआ का ये फूल टेस्ट किया था, ये दाड़ोबा का स्पेशलिटी है, तो आप हमें बता सकते हैं ये क्या है एक्चुअली? तो मोहा का कलेक्शन लोकल लोग बहुत करते हैं। तो उसका फ्लावरिंग मार्च से स्टार्ट होता है। और इसका यूज़ जो है, लोग दारू बोल सकते हैं, वाइन बोल सकते हैं, उसके लिए होता है। मोवा दारू बोलते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए भी होता है, जूस के लिए होता है, शरबत के लिए होता है, और मेडिसिनल इसके लिए भी होता है। उसको ट्राई करके यूज़ किया जाता है। करेक्ट। तो ये तो ट्री फॉरेस्ट के अंदर होता है, तो ह्यूमंस जाते हैं तो टाइगर अटैक नहीं करता उन पर? हाँ, तो वही है कि ये महुआ फ्लावर से ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मतलब टाइगर ह्यूमन पे करता है। तो इसका बड़ा रीज़न है, महुआ फूल ही बोल सकते हैं कि महुआ कलेक्शन करने के लिए लोकल लोग जाते हैं। क्योंकि मॉर्निंग इसका फ्लावरिंग नीचे ही होता है, मतलब गिरता है, फ्लावर पड़ता है, तो वो कलेक्शन के लिए वो जाते हैं लोकल लोग। और इतने बिजी होते हैं कि उनको आजू बाजू में क्या है पता भी नहीं चलता। तो इसलिए सबसे बड़ा जो टाइगर के इसमें जो इंसिडेंट हुए हैं इंसान मारने के, तो महुआ कलेक्शन से होते हैं ईयरली। यहाँ पे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में अराउंड हर ईयर 4 से 5 होते हैं। हाँ, हाँ। मुझे और एक पूछना था, और मैंने सुना भी है काफ़ी टाइगर जे के बारे में, ये यहाँ पर डोमिनेंट मेल था, राइट? बस ताड़ोबा का नहीं है वो, मतलब यहाँ से 75 किलोमीटर जो उमरेट करंडला जो है वहाँ का मेल बोल सकते हो। ओके। वो फिर वो सबसे सडनली ऐसे डिसअपियर हो गया, राइट? हाँ, मतलब इंडिया का बोल सकते हो Okay. सबसे बड़ा टाइगर। तो 2011 बर्थ बोलते हो, तो वहाँ से वो एक्चुअली उसका बर्थ नागजीरा में हुआ था। नागजीरा से वो माइग्रेट करके 2013 में वो करंडला है, उमरेट करंडला। और वहाँ पे वो 2016 तक रहा। फिर अचानक अप्रैल मंथ में वो गायब हो गए। जो अभी आप बोलते हैं कि हर एक टाइगर को नाम है, नाम है, Correct. तो उसकी वजह वो फेमस होने के कारण ही एक्चुअली वो गायब होने के उसमें रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि उसके बाद में उसका सर्च ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन किसी को वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ना डेट ना कुछ मार्क्स, कुछ भी नहीं मिला। और उसको हल्क भी बोलते थे। सबसे बड़ा टाइगर था, जो वेट था 250 केजी था। वाओ। ये टाइगर में बहुत कम मिलता है, और एक रोड ब्लॉक कर सकता था, इतना उसका लेंथ था, सॉरी। और एक्चुअली वो जैसे ही आया तो वो वहाँ का किंग बन गया, उमरेट करंट लगा। और उसी टाइम में उसने 11 उसके कप्स, 11 कप? हाँ, अलग अलग फीमेल से 13 से लेकर 16 तक। सडनली वो वहाँ से मिसिंग हो गया। उसका सर्च ऑपरेशन भी हुआ बट नहीं मिला। एक बोलते हैं कि जो फेमस कैरेक्टर है उसके रीजंस भी बहुत होते हैं कि गायब होने के। तो इसी जैसे मिसिंग हो गया, तब से वो टाइगर को नाम देना बंद हो गया। उसके रीजंस वो भी है कि एक टाइगर का नाम अगर उस एरिया में है तो वो सबको पता चलता है, और एरिया भी पता चलता है। उसी एरिया में वो रहता है, वो एरिया छोड़कर नहीं जाता है। अगर दूसरा मेल आता है या फाइट के कारण अगर वो वहाँ से खदेड़ ले जाता है तो फिर उसको एरिया छोड़ना पड़ता है, बट वो अपने एरिया में रहता है। तो इस कारण भी हो सकता है कि बाकी, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ऐसे है, पोचर भी बहुत एक्टिव है। तो एक रीज़न हो सकता है कि वो पोचिंग हुई है या नहीं है, बट अभी उसके पर अभी तक कंफर्मेशन कंफर्मेशन नहीं है।
मतलब उसका लास्ट साइटिंग था अप्रैल 2016 में। जो सबसे बड़ा टाइगर वागडो उर्फ उसको स्कारफेस बोलते हैं, तो वो था यहाँ का। और उसको फादर ऑफ ताड़वा भी बोलते हैं टाइगर्स में। माधुरी जो टाइग्रेस है उसको फादर ऑफ ताड़वा बोलते हैं। सोनल भाई थैंक यू सो मच हमें एकोमोडेट करने के लिए और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने पास ऑन की है। स्टे ट्यून गाइस। The night continued with stories of Tadoba. Me and my group were totally enjoying our stay. No guest has returned from Aksas home disappointed.